اور عورتیں اور شراب، طاقت، میں خود کو خدا جیسا سمجھتا تھا۔ زندگی ایک ہی بار ملتی ہے، زندگی جی بھر کے جیو۔ ایسا لگتا تھا جیسے جینے کی کوئی وجہ ہی نہیں۔ میں فٹ بال ٹیم کا حصہ تھا، میں سپر اسٹار تھا، اخبار میں میری تصویر شائع ہوتی، میں خوش نہیں تھا کیونکہ میں لوگوں کو یہ دکھانا چاہتا تھا کہ اسلام ایک خطرناک مذہب کیوں ہے، اور آخر میں نے لکھنے کا فیصلہ کیا اسلام مخالف کتاب۔ کیونکہ آج کل ہر کوئی پریشان ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتا کیا کریں، ہم پریشان حال ہیں، لوگ جذباتی ہو چکے ہیں، انہیں سوالوں کے جواب نہیں ملتے، یہ بات انہیں مایوسی کی طرف لے چلتی ہے، غصے کی طرف۔ میں نے ان کے کردار کو دیکھا، میں نے دیکھا وہ دوسروں کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے، وہ اپنے دشمنوں سے کیسے پیش آتے۔ میں نے سوچا یہی تو ہے نبی، یہی تو ہے نبی۔ میں نے سوچا ٹھیک ہے، اب کتابیں بند کرو اور رک جاؤ، یہ سب غلط سمت کو جا رہا ہے۔ اسلام قبول کرنے سے مجھے صرف حتمی مقصد ہی نہیں ملا بلکہ زندگی کا مقصد بھی مل گیا۔ مجھے لگا نہیں کہ میں بدل رہا ہوں، مجھے لگا کہ میں ڈھل رہا ہوں۔ یوں محسوس ہوا جیسے یہ ایک تسلسل تھا، یہ آفاقی تھا۔ اسلام ہر بیماری کا علاج ہے، زندگی کا رہنما ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ تو آپ کے ٹینیج کے سال کیسے گزرے؟ میرے لیے ٹینیج کے سال کافی مشکل تھے، کیونکہ بچپن سے میں سمجھتا تھا کہ کچھ چیزیں مجھے خوشی دیں گی، باہر گھومنا، پارٹی کرنا اور شراب نوشی، لڑکیاں۔ جب میں 18 سال کا ہوا تو میں پوری طرح سے اپنی زندگی میں پیسے، عورتیں، شراب اور طاقت، اس سب کے پیچھے برباد ہو چکا تھا۔ میں خود کو خدا جیسا سمجھتا تھا اور میں سوچتا تھا کہ میں اور لوگوں سے بہتر ہوں۔ سچ کہوں تو مجھے لگتا تھا کہ میں ناقابل شکست ہوں۔ مجھے لگتا تھا جیسے میری کوئی اہمیت ہے، اور وہ احساس بالکل غلط تھا۔ مجھے خود سے نفرت ہو گئی تھی، مجھے لگتا تھا کہ یہ چیزیں مجھے خوشی دیں گی، کیونکہ میں خوش نہیں رہ سکتا تھا۔ دنیا کی کوئی چیز مجھے خوش نہیں کر پاتی تھی۔ میرے پاس چاہے ساری دنیا کا پیسہ، میرے ارد گرد 10 عورتیں ہوں، میرے پیچھے پیسوں کا ڈھیر ہوں، میں خوش نہیں تھا۔ کچھ بھی مجھے خوشی نہیں دیتا تھا، کچھ بھی مجھے خوش نہیں کر پاتا، چاہے میں کچھ بھی کر لوں۔ جیسے میری عمر بڑھی، معیار بھی بلند ہوتا گیا اور میں مزید حاصل کرتا گیا، اور جتنا زیادہ ملا اتنا ہی میں خوش نہ ہو سکا۔ تو پتہ ہے یہ مزید بدتر ہو گیا، کیونکہ مجھے لگا اگر یہ مجھے خوشی نہیں دے سکتا تو کچھ بھی مجھے خوشی نہیں دے سکتا۔ میں بالکل ٹوٹ چکا تھا، میں برباد ہو چکا تھا، میں بے راہ تھا، کوئی رہنما نہیں تھا۔ میں رات کو بے تحاشا شراب نوشی کرتا، جب میں مایوس اور تنہا تھا کوئی میرے ساتھ نہیں تھا، اور کوئی بھی بطور دوست میرے ساتھ نہیں تھا۔ پتہ ہے وہ بس یہ چاہتے تھے کہ میں ان کے ساتھ رہوں، ہم سب ساتھ زندگی برباد کریں، اور جنہیں میں دوست سمجھتا تھا وہ کبھی دوست تھے ہی نہیں۔ اب جا کے سمجھا۔ اسلام سے پہلے آپ کی زندگی کا مقصد کیا تھا، اور اسلام کے بعد کیا ہو گیا؟ میرا عقیدہ یہ تھا جسے ہم UK میں کہتے ہیں یولو، یعنی یو اونلی لیو ونس۔ زندگی ایک بار ملتی ہے تو پھر زندگی جی بھر کے جیو۔ لیکن اس طرز زندگی کا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا، اور جب مقصد نہ ہو تو انسان ایک وجودی بحران کا شکار ہو جاتا ہے، جہاں لگتا ہے کہ جینے کی کوئی وجہ ہی باقی نہیں رہی۔ اور میں اپنی زندگی میں کئی بار اس مقام پر پہنچی ہوں جہاں یہ محسوس ہوتا تھا کہ جب روشنی مدھم ہو جائے، جب پارٹی ختم ہو جائے تو زندگی کا کیا مطلب بچتا ہے۔ تو اسلام نے مجھے نہ صرف آخرت میں جنت میں دائمی خوشی حاصل کرنے کا مقصد دیا، بلکہ ساتھ ہی اللہ نے مجھے ایسی نعمتیں دیں جو میں اس دنیا میں استعمال کر سکتی ہوں، جیسے میری آواز اور لوگوں کے ساتھ میری بات چیت بھی ایک نعمت ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اسلام قبول کرنے سے مجھے صرف حتمی مقصد ہی نہیں ملا بلکہ زندگی کا اصل مقصد بھی مل گیا۔ ایسا اور کیا ہوا جس نے آپ کو اسلام کی جانب مزید مائل کیا؟ مجھے قرآن سننا یاد ہے، جب پہلی بار سنا اور وہ بہت ہی پر اثر تھا۔ اتنی کشش محسوس ہوئی کہ بس مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ٹھیک اس وقت میں عربی نہیں سمجھتا تھا، مگر اس کی تلاوت نے مجھے چھو لیا، اور جب میں نے اسلام کو سمجھا تو مجھے یہ کچھ نیا نہیں لگا، یہ کچھ آفاقی سا لگا۔ یوں لگا جیسے یہ ایک تسلسل ہے، ایسا نہیں لگا کہ میں بدل رہا ہوں، جیسے میں خود کو ڈھال رہا ہوں۔ تمام انبیاء کو جاننا، عہد قدیم کو جاننا، عہد جدید کو جاننا، مجھے لگا کہ اسلام بس آخری پیغام ہے، اور پھر آخرکار یہ سمجھ آیا کہ اسلام وہی پیغام ہے جو ہمیشہ سے چلتا آیا ہے۔ یہ قابل فہم ہے، ایسے جیسے لا الہ الا اللہ، موسیٰ رسول اللہ، عیسیٰ رسول اللہ، نوح رسول اللہ، ابراہیم، اور اب ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ ایک ہی پیغام ہے، بس ایک چیز مستقل ہے، لا الہ الا اللہ، اور باقی بدلتا رہتا ہے، یعنی انبیاء بدلتے رہتے ہیں۔ یہ بالکل کامل تھا۔ آپ کئی بار عمرہ کرنے جا چکے ہیں، لیکن جب آپ نے پہلی بار عمرہ کیا تو سب سے زیادہ کس چیز نے متاثر کیا اور کیوں؟ جب میں مسجد الحرام گیا، اتنے سارے لوگ ایک جگہ پر، ہر نسل کے، ہر رنگ کے، بلکہ ہر ایک ملک کے، میں سمجھ گیا کہ یہی اصل جواب ہے۔ یہ لوگ یہاں آئے تھے حج کرنے، اللہ کے لیے۔ یہ ویٹیکن جیسا نہیں ہے، لوگ وہاں پوپ کو دیکھنے کے لیے ہوتے ہیں لیکن یہاں اللہ کے لیے تھے۔ یہ سچے ایمان والے لوگ ہیں، اور پھر یہاں علاج تھا، نسلی تعصب کا جواب تھا، یہ عالمی امن کا پیغام ہے، اور یہی لمحہ میرے لیے فیصلہ کن تھا۔ اسلام دراصل ہر بیماری کا علاج ہے، ہر مسئلے کا حل ہے، یہ زندگی کا رہنما ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ تحقیق کے دوران آپ کو سب سے زیادہ کون سی بات نے حیران کیا؟ ہندا کی کہانی،
ऐसा लगे जैसे अंदर कुछ बदल गया हो, जैसे कोई स्विच ऑन हो गया हो। और उसकी वजह ये थी कि मुझे लगता था कि हिंदा जो दुश्मनों में से एक की बीवी थी, यानी अबू सुफियान की, उसने हजरत हमजा को शहीद करवाने के लिए पैसे दिए थे, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे महबूब चचा थे। और फिर यही मैदान जंग में भी हुआ, हजरत हमजा शहीद हो गए, दुश्मनों ने उनके कान काट दिए और नाक काट दी और दिल खराश सलूक किया। तो हमारे नबी बहुत रंजीदा हो गए यकीनन जो कुछ हुआ था उस पर। और फिर कई वर्षों के बाद आपको गलबा हासिल हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में फातेह बनकर आए। और फिर हिंदा सामने आई और मैं किताब पढ़ रहा था, तो मैंने सोचा अब इसको तो सूली चढ़ाया जाएगा या उसका सर कलम कर दिया जाएगा या कुछ इस जैसा होगा। लेकिन आपने फरमाया कि मैं अभी इसकी तरफ नहीं देख सकता, लेकिन सबको माफ कर दिया गया है। और अगर तुम रुकना चाहती हो और मुसलमानों के साथ रहना चाहो तो रह सकती हो, अगर तुम ऐसा ना चाहो तो जा सकती हो। लेकिन अब खून बहाने का सिलसिला खत्म हो चुका है। और मैंने सोचा कि उसे माफ कर दिया गया। और अगर आप किसी ऐसे शख्स को माफ कर सकते हैं जिसने आपके किसी अजीज, खासतौर पर आपके महबूब चचा को कत्ल किया हो, लोगों को दिखाया हो ताकि वो आपको रुस्वा कर सके, और फिर भी आप उस पर कायम है, तो इसका मतलब है कि आपका किरदार बेमिसाल है, बेहद अजीम है। ऐसा आमतौर पर देखने को नहीं मिलता और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ही किया। तो मैंने सोचा ये वाकई गैर मामूली शख्सियत है। और जब मैंने ये सोचा तो फिर मेरे पास दलाइल भी थे कि वो नबी हैं और मैं उनका किरदार देखता हूँ, वो कैसे दूसरे लोगों के साथ पेश आते हैं। मैंने देखा वो दुश्मनों से कैसे पेश आते हैं, तो यकीन हो गया कि आप नबी हैं। लेकिन फिर मैंने सोचा ये तो हैरान कुन है, क्योंकि मैं तो पहले ही अल्लाह की वहदानियत को मान चुका हूँ और मैं कह रहा हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हैं। और अगर मैं कहूँ कि अल्लाह एक है और मोहम्मद उसका रसूल है, तो ये तो तकरीबन शहादत ही है। तो मैंने सोचा अच्छा चलो अब किताबें बंद करो, बस रुक जाओ ये मामला खतरनाक सिमत में जा रहा है। स्पोर्ट्स इटर्निटी में हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। हम एक फलाही तंजीम है जिसका अज़म इस्लाम के पैगाम को 10 ज़बानों में दुनिया भर में फैलाना है। अपनी सपोर्ट से आप लोगों को इस्लाम में दाखिल होने, हराम काम छोड़ने, नमाज शुरू करने, हिजाब पहनने, कुरान की तलावत सीखने जैसे अमाल में मदद दे सकते हैं और इन तमाम नेक अमाल के बदले अजर अजीम पा सकते हैं इंशाअल्लाह। टुवर्ड्स इटर्निटी को अतिया दें और इस सुनहरे मौके को ज़ाया ना होने दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो कौन सी सिफ़त है जिसने आपको सबसे ज़्यादा मुतासिर किया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा लोगों के मिजाज के मुताबिक उनसे गुफ्तगू फरमाया करते। ये उनकी एक हैरत अंगेज सिफ़त थी। उनका रवैया हर एक से एक जैसा नहीं होता, बल्कि हर शख्स के मुताबिक बदलता था। मेरा मतलब है वो हमेशा इंसाफ करते, लेकिन अगर कोई बच्चा उनके पास आता तो वो वैसे ही हो जाते। अगर कोई सराय बद्दू उनके पास आता तो वो उसके मुताबिक बात करते। अगर कोई तालीम याफ्ता शख्स आता तो वो उसका अंदाज अपनाते। वो हर एक के मुताबिक ढल जाते। अगर औरत बात करती तो नरमी अख्तियार करते। वो हमेशा लोगों की सतह पर आकर उनसे बात करते थे, हत्ता कि गुफ्तगू का अंदाज बदल जाता, हत्ता कि बर्ताव भी मुख्तलिफ हो जाता। अक्सर ऐसा भी होता, लोग एक ही सवाल पूछते, लेकिन आप उनका पस मंजर जानते हुए उन्हें ऐसा जवाब देते जो वो वाकई समझ सके, और वो जवाब उनसे जुड़ जाता और उनकी जिंदगी बदलने में उनकी मदद करता। ये बात मुझे बहुत खास लगती है। आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी बात सबसे ज्यादा मुतासिर कुन लगी? ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की तरफ से बेफिक्री की इजाजत नहीं थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आराम का कोई मौका नहीं दिया गया। अगर आप सीरत नबवी का मुताला करें, खुसूसन वो 13 साल और वो तमाम जंगें जिनकी आपने निगरानी फरमाई, या वो गज़वात जिनमें आप शरीक हुए, और वो मुआहदात जो आपने लिखवाए जिनका हुक्म आपको हजरत जिब्राइल के जरिए वही के तौर पर दिया गया, अगर आपकी हयात तैयबा पर नजर डाली जाए तो वो मुसलसल मसरूफ अमल रही। और ये नाकाबिले यकीन है, ऐसी मसरूफ जिंदगी मुसलसल एक इंसान की हो सकती है जिसका काम था पैगाम पहुंचाना, लोगों को नज्म में रखना, काजी बनना, सालेसी करना और लोगों को मुतासिर करना, उन्हें तालीम देना, सिपाही बनना और सिपासलार भी, रियासत का सरबरा, शहर और दोस्त भी। आखिर वो ये सब कुछ कैसे कर सकते थे? ये सब वही की बदौलत था, क्योंकि ये सब फरमान इलाही था। और जाहिर है कि मैं अब इस्लाम मुखालिफ नहीं रहा था, क्योंकि जो मैंने पढ़ा, जो मैंने देखा, जो खुद महसूस किया, मैं जो बताने जा रहा हूँ वो किसी कहानी जैसा लग सकता है, मगर ऐसा वाकई हुआ। आखिर में मेज़ पर कई किताबें रखी थी और मुझे एक ऐसा एहसास हुआ, हाँ अच्छा ये तो एक तरह से शहादत है। मैंने कहा ठीक है। मैंने सारी किताबें बंद की और उन्हें ऊंची अलमारी पर रख दिया, लेकिन किताबें इतनी ज़्यादा थी कि कई किताबें नीचे गिर गईं, और उनमें से एक किताब जो नीचे गिरी वो कुरान था। और जब मैंने उसे उठाया तो मेरा हाथ सूरह नंबर 22 के सफ़े पर था, आयत नंबर 46, और उसमें लिखा था कि आंखें अंधी नहीं होती बल्कि वो दिल अंधे हो जाते हैं जो सीनों में है। और मैंने दिल में सोचा यही तो मेरी असल परेशानी है, क्योंकि मसला आंखों का नहीं था। मैं वाकई देख सकता था जो कुछ खुद ही लिखा था। मुझे किताब लिखने पर किसी ने मजबूर नहीं किया, किसी ने नहीं किया कि तुम ये लिखो वो लिखो। मैंने तो खुद ही लिखना शुरू किया और ये मैं अपनी आंखों से देख सकता हूँ। लेकिन मैं फिर भी इस हकीकत को कबूल नहीं कर रहा था कि वो वाकई नबी है, एक ही खुदा है। मैं बस मान नहीं रहा था। यानी मेरी आंखें नहीं थी जो अंधी हुई थी, हाँ, मगर मेरा दिल अंधा हुआ था। मैं कबूल नहीं कर पाया। मेरे ख्याल से मेरा नफ्स, या शायद इससे मेरी अना कह लें, मैं उसे तस्लीम नहीं कर पाया। और मैंने कहा खुदाया, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि बाइबल का खुदा है या फिर कुरान का, मुझे कोई निशानी दिखा ताकि मैं 100% यकीन कर लूं कि यही सही रास्ता है। और फिर मैं सो गया। लेकिन जब सुबह आंख खुली तो दिल के अंदर बड़ा सुकून था। तो मैं बहुत महफूज महसूस कर रहा था। इतना पुरसुकून मैं कभी भी किसी बात के लिए नहीं रहा। सारी बेचैनी, सारे शकों को शुबहात खत्म हो गए, जैसे धूप में बर्फ पिघल जाए। और मैंने दिल में सोचा, लगता है कि मैं मुसलमान हो चुका हूँ। और जाहिर है मुझे ये बात दूसरों को भी जाकर बताना थी।
इस्लाम की तरफ आपके सफर के आखिरी मराहिल क्या थे? यानी एक दिन मैं उठा और मैं अंदर से बिल्कुल टूटा हुआ था और दिल में आया अब तुम्हें किस चीज का इंतजार है? तुम जानते हो कि यही सच है। मैं यूनिवर्सिटी गया, वहाँ अपने दोस्त कमाल से मिला और मैंने कहा मैं चाहता हूँ कि तुम आज रात मेरे घर आओ। मैंने कहा मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तो उसने पूछा खैरियत है? मैं बोला बस तुम लाजमी आ जाना। तो उसने कहा मसला नहीं, मैं आ जाऊंगा। उस दिन इम्तिहान था। मैं कुछ दोस्तों के साथ अपने घर की ऊपरी मंजिल पर पढ़ाई कर रहा था और कमाल ने नीचे से आवाज दी। मैं आ गया। मैंने कहा अच्छा मैं नीचे आ रहा हूँ। तो मैं नीचे आया। रात का वक्त था और मैंने बस उसे देखा। उसने पूछा क्या मसला है भाई, सब खैरियत है? मैंने कहा मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। और वो बोला मुझे अंदाजा था। वो बोला मैं जानता था। मैंने कहा क्या मतलब? कहने लगा वो लंबी तरावी याद है। और फिर हमने साथ नमाज पढ़ी थी। वो बोला मैंने सजदे में दुआ की, या अल्लाह इस लड़के को तेरी तलाश है, इसे इस्लाम की जानिब रहनुमाई दे, ये इस्लाम कबूल कर ले। फिर उन्होंने कहा कि मेरे पीछे दोहराओ। मुझे पहले ही मालूम था कि क्या कहना है। जब मैंने शहादत पढ़ी, महज वो अल्फाज अदा करते ही मेरे दिल से जैसे एक बोझ सा उतर गया हो। उस रात जो सुकून की नींद आई वो अलग ही थी। अगर आपको दुनिया के तमाम गैर मुस्लिमों से मुखातिब होने का मौका मिले और सिर्फ 1 मिनट का वक्त हो तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओह तुम जो इस वक्त घर पर बैठे हो, ऐसा वक्त आता है जब तुम नहीं जानते तुम क्यों जिंदा हो। उदास लम्हात भी आते हैं और मायूसी और गम के भी, और जो कुछ भी खुशी देता था वो बेमायने लगता है। तुम्हें दर्द होता है और शायद कभी कभी तुम नहीं जानते कि तुम आखिर जिंदा क्यों हो। तुम चाहते हो किसी से मदद मांगो मगर समझ नहीं आता कि कैसे मांगो, और सब कुछ अजनबी और गैर हकीकी सा लगने लगता है। अल्लाह एक है। जब तुम्हें ऐसा लगे तो किसी गुलाब को देखो, बाग में खिला गुलाब देखो और सोचो ये हमारे लिए खुशबू बनाता है। जब तुम ऐसा महसूस करो शहद की मक्खियाँ देखो और सोचो कि शहद का जायका कितना मजेदार है और इसमें शिफा भी है। गला खराब हो तो हम इसे खाते हैं। बस जरा सोचो कि कुदरत हमारे लिए किस तरह मौजूद है, और ये कितना खूबसूरत निजाम है कि बारिश का पानी जमीन में जज्ब होकर दरख्तों की जड़ों तक जाता है और फिर वो दरख्त एक पत्ता या फूल उगाता है और वो फूल एक फल बन जाता है जिसे हम तोड़कर खा सकते हैं। और इसमें हमारे लिए भलाई है। और अपने रब की मोहब्बत भरी और मेहरबान मौजूदगी को दिल से महसूस करो। नीयत खालिस रखो, ये शायद तुम्हारे सारे कामों में सबसे मुश्किल चीज है। हर हदीस की किताब इस हदीस से शुरू होती है, इन्नमल अमालो बिन्नियात। अमाल का दारो मदार नियतों पर है, क्योंकि ये नियत खुलूस और इखलास की बात है। हजरत सूफियान सूरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मा वजदतु शै अलई अशदु मिन नियती। मैंने नियत से ज्यादा कोई चीज मुश्किल नहीं पाई। इखलास, अगर तुम मुखलिस हो, अगर तुम वाकई अल्लाह को चाहते हो, तुम्हें अल्लाह चाहिए तो तुम उसे पालोगे, जरूर पालोगे। तो अगर तुम मुखलिस हो, जिंदगी में जो भी काम करो, मेरा ख्याल है कि आखिरकार नतीजा हमेशा अच्छा और मस्बत ही निकलेगा। मैं उन्हें ये कहूंगी कि इस रोजमर्रा की भाग दौड़ के पीछे कोई मकसद होना चाहिए, यही सब कुछ नहीं है। और अगर तुम्हें लगे यही सब कुछ है, फिर तो ये यकीनन सबसे अफसोसनाक नतीजा है कि जिस तक कोई पहुंच सकता है, क्योंकि ये जिंदगी रोलर कोस्टर की तरह है। आजमाइशों से भरी हुई है, मुशक्कतों से भरपूर है, मुश्किलात से भरी हुई है, ये नाइंसाफियों और गमों से भरी हुई है। तो अगर बस यही जिंदगी है तो फिर हमें तख्लीक क्यों किया गया? मैं चाहूंगी कि लोग इस पर गौर करें। मैं उनसे कहूंगी कि वो जिंदगी के सफर पर गौर करें। एक फूल को देखें कि कैसे वो फूल एक बीज से उगता है और खूबसूरती से खिलता है और फिर मुरझा जाता है और खत्म हो जाता है। मैं उनसे कहूंगी कि बस समंदर के किनारे खड़े हो जाएं और उसकी गहराइयों में भी झांकें, जहां अंधेरों में भी जिंदगी मौजूद है। एक पत्ता लें और उसकी नाजुक नक्शो निगारी को गौर से देखें और खुद से पूछें कि ये सब आया कहाँ से है, ये सब किसने बनाया है, इस पत्ते का क्या मकसद है, इस फूल का क्या मकसद है, इस समंदर का क्या मकसद है। और फिर ये सोचें कि मैं भी उस रब की बनाई हुई मखलूक हूँ। तो अगर पत्ते का कोई मकसद है और फूल का भी कोई मकसद है, तो मेरा मकसद क्या है? बस मैं उनसे यही पूछूंगी। मैं बहैसियत इंसान ये कहूँगा सोचते कैसे हैं, हमें ये सीखना होगा। यानी अब जिंदगी में इतने उलझ गए हैं कि सोचने का वक्त ही नहीं मिलता। यानी हम जी किसके ले रहे हैं और क्यों जी रहे हैं। कभी कभी जिंदगी को रोक कर थोड़ा सा सोचना चाहिए। सिर्फ इस बुनियाद पर ना चले कि आपका खानदानी पस मंजर क्या है। ये ऐसा है क्योंकि मैं इंग्लैंड में पैदा हुआ, चर्च ऑफ इंग्लैंड में, तो मैं लाजमन ईसाई बनूंगा। यानी अगर मैं इसराइल में पैदा होता तो मैं फिर यहूदी होता। तो ये ऐसे नहीं है। सच क्या है, ये मुझे विरासत क्या मिली, इस बारे में है। मेरा नहीं ख्याल कि मजहब विरासत में होना चाहिए। हमें हक सच की तलाश खुद करनी चाहिए और हमें तहकीक करनी चाहिए। मेरा पैगाम यह होगा, मीडिया की बातों पर ध्यान न दें, इन सियासतदानों को न सुने जो इस्लाम मुखालिफ बातें करते हैं। अपनी तहकीक खुद करें। आप अपने इल्म मालूमात के हमेशा खुद ही जिम्मेदार हैं। अगर आपको कुछ समझ ना आए तो तहकीक करें, और ये बहुत ही आसान है। सोशल मीडिया पर बहुत सारा मवाद है। आप इस्लाम के बारे में बहुत पढ़ सकते हैं। मस्जिद जाएं, इमाम से बात करें, मुसलमानों के पास जाएं, इस मजहब के बारे में बात करें, और सिर्फ अंधी तकलीद हरगिज ना करें उसकी जो मीडिया और सियासतदान आपको बताते हैं। अपनी तहकीक खुद करें, फिर आपको पता चलेगा इंशाअल्लाह कि इस्लाम ही हल है और इस्लाम ही हक है। मैं दुनिया के तमाम गैर मुस्लिमों से कहना चाहूँगा
کہ آپ مسلمان پیدا ہوتے ہیں، آپ یہ جان کر پیدا ہوتے ہیں کہ ایک اعلیٰ ہستی موجود ہے۔ یہ دنیا کا سب سے خوبصورت احساس ہے جب آخرکار آپ اس حالت میں لوٹ آئے ہو جس میں آپ اپنی زندگی کے پہلے دن تھے، جب آپ نے دنیا میں سانس لیا، جب آپ مسلمان تھے۔ اسی سوچ کی طرف لوٹنا بہتر ہے کیونکہ وہ آپ کی اصل فطرت ہے۔ یہ سب جانتے ہیں کہ یہ ابدی زندگی ہے اور اللہ ایک ہے، اور یہی تعلیمات معاشرہ اور لوگ اس فطری راستے سے بھٹکاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں، اسلام کسی قسم کا ایبسٹریکٹ نہیں ہے، الگ تھلگ یا محض ایک ثقافتی نظریہ نہیں ہے، بلکہ اسلام تو تمام انسانیت کے لیے ایک عالمگیر پیغام ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے بس یہی ایمان کافی ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد اس کے آخری نبی ہیں، بس آپ کو اسی پر ایمان لانا ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد میں بہت زیادہ خوش رہنے لگا، اس لیے میں سب کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ وہ مسلمان ہو جائے، کیونکہ یہ انسان کی روح کو سکون دیتا ہے اور دل کو اطمینان دیتا ہے۔ یہی سچ ہے، یہ دل اور روح دونوں سے ہم آہنگ ہے۔ کم از کم ایک بار اسلام کے زاویے سے اسے دیکھنے کی کوشش تو کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ مسلمان کیا عقیدہ رکھتے ہیں، مسلمانوں کے عمل پر نہ جائیں، کیونکہ مسلمان ایسے بھی ہیں جو خود بھی اسلامی طرز زندگی پر نہیں چلتے۔ میں بھی ان میں شامل ہوں۔ میں ہمیشہ بطور مسلمان زندگی نہیں گزارتا جو گزارنی چاہیے ہم سب کو، لیکن آپ کو اس ہستی کو دیکھنا چاہیے جو سب کے لیے نمونہ ہے، اور وہ ہے نبی اکرم۔ اگر آپ ان کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں تو شاید آپ کو وہ ہدایت مل جائے جو آپ کو حق کی طرف لے جائے۔